As we know that we are discussing chapter 17, forests, our lifeline. In previous lecture I have discussed already about the visit to a forest and some activities like 17.1 also discussed, 17.2 discussed, and 17.3 also discussed. So right now today we will discuss about the balance of oxygen and carbon dioxide. It is also discussed in previous lecture. So today we will discuss the children saw clouds forming in the sky. Bujo recalled what he had learned about the water cycle in class 6th. Trees takes in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation. So student, in previous lecture we already discussed about the balance of oxygen and carbon dioxide. We know that plants take in carbon dioxide which are releases from the animals during respiration, and it is this carbon dioxide uses plants, and after using it helps in the photosynthesis, and after photosynthesis he produced the photosynthesis we can say the oxygen are produced, and this oxygen again taken by the animals for their respiration. So in this after this the children saw clouds forming in the sky. Bujo recalled what he had learned about the water cycle in class 6. Trees takes in water from their roots and releases water vapor into the air through evaporation. So students, after seeing saw clouds, students discussed that we already discussed the clouds, or we can say the water cycle in class 7th. Trees take in water cycle. What happens? We know that the plants take in water through their roots and releases water vapor into the air through evaporation. प्लांट क्या करते हैं? प्लांट रूट के जरिए या रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो इवेपोरेशन के ज़रिए या ट्रांसपीरेशन के ज़रिए लॉस होता है, हम ये जानते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर. प्लांट्स या ट्रीज वाटर को रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर वेपर को और उसको उसी जो एब्जॉर्ब वाटर है उसको किस तरह रिलीज़ करते हैं? ये इवेपोरेशन के माध्यम से, इवेपोरेशन के मीडियम से उसको वो रिलीज़ करते हैं. इफ़ देयर वेर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल इज़ अफेक्टेड? अगर बहुत कम ट्रीज रह जाएंगे तो ये मीन्स दैट कि अगर डिफॉरेस्टेशन लगातार हो रहा है तो क्या ये वाटर साइकिल आपकी अफेक्टेड होगी? Tibu told them that the forest is not just home to plants and animals. Many people also live in the forest. Some of them may belong to different tribes. Tibu explained that these people depend mostly on the forest. The forest provide them with food, shelter, water and medicine. They have traditional knowledge about many medicinal plants in forest. So Tibu told them that the forest is not just home to plants and animals. Beside plants and animals, there are different people who live in the forest, and we also know that the forest provides us what? Forest provides us these people to the food, shelter, water and medicine, and these people also aware with the medicinal value of the plant. What is the value of the plant? Means in medicine field, what is the value of the plant? So traditionally the treatment are done by the using these medicinal plants, and now in nowadays the medicinal plant also used in severe diseases. तो आज के दिनों में भी जो ट्रेडिशनल प्लांट है उनका यूज़ बहुत सारे मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनका बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट में, बहुत सारे रोगों में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ हो रहा है. तो टीबू ने कहा कि जो ये फॉरेस्ट है इसमें केवल ये प्लांट्स और एनिमल्स का ही होम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग रहते हैं और यहाँ से वो
मोस्टली क्या वहाँ ऑब्टेन करते हैं, उनको फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, वाटर और मेडिसिन मिलते हैं। While Bujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. They disappeared into the bushes. The dense bushes and tall grass provide animals with the food and shelter. They also protect them from carnivores that live in the forest. बूझो जब ड्रिंक कर रहे थे, वाटर जब ड्रिंक कर रही थी बूझो, तो उसने देखा कि एक कुछ डियर्स जो है, कुछ हिरन जो हैं वो स्ट्रीम को क्रॉस करके जा रहे हैं और अचानक डिसअपीयर्ड हो गए। वो कहाँ चले गए? बुशेस में, झाड़ियों में चले गए। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल विद द फूड एंड शेल्टर। मीन्स दैट ये बुशेस जो प्लांट्स हैं, जो ग्रासेस हैं, एनिमल्स को ये क्या प्रोवाइड करते हैं? बुशेस और ग्रासेस जो है ये एनिमल को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट दे फ्रॉम कार्निवोर्स, और ये उनको जो कार्निवोर्स एनिमल हैं उनसे भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं, दैट लिव इन द फॉरेस्ट, जो कि जंगल में रहते हैं। सो हियर इट इज़ क्लियर दैट कि जो बुशेस हैं, जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को, या जो झाड़ियाँ होती हैं वो एनिमल्स को रहने का स्थान देते हैं और वहाँ पे उनको भोजन भी प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर आल्सो। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, और क्या करते हैं वो? कॉर्निवोर्स या कोई ऐसे एनिमल से भी उनको उनको प्रोटेक्शन करते हैं जो उन्हें मार के खा जाएं। तो ये बुशेस और ये टाल ग्रास इन्हें छिपने में भी हेल्प करते हैं। Tibu then started looking closely to the forest floor. Soon he called and showed the children dropping some animals and explained the difference between various types of dropping. Professor Ahmed informed them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their dropping and footprint. So also we know that there are some animals who drops some other animals we can say, उनको वहाँ जंगल में छोड़ देते हैं और उनके फुटप्रिंट से हम उनको पहचानते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसे रहे होंगे। इसको कौन पहचानते हैं? जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले ऑफिसर्स हैं, वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो इन फुटप्रिंट से उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह के एनिमल्स यहाँ से गुजरे होंगे या यहाँ पे रहे होंगे। बुजो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। सेवरल beetles and grubs were feeding on the heap and bunch of seedling was sprouting. These seedlings are the herbs and shrubs. The animals also disperse the seed of certain plants and help the forest to grow and regenerate. The decaying animal dung also provide nutrient to the seedling to grow, said Professor Ahmed. और प्रोफेसर अहमद ने और क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग, मीन्स दैट कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो वहाँ पे जुगाली करके कुछ ड्रॉप कर देते हैं, और या तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट में क्या होता है, जब वो जुगाली करके करते हैं तो उनके खाने से या जब वो खा रहे होते हैं तो कुछ सीडलिंग गिर जाते हैं और वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो ये जो डिकेइंग एनिमल के डंग हैं ये भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं किसको? इस सीडलिंग को ग्रो करने में। सो यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, अ सैपलिंग ऑन अ वॉल। यहाँ पे सैपलिंग देखिए, ये सैपलिंग किसी वॉल पे है और ये किसी एनिमल के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू ही यहाँ पे आया होगा, और देखिए यहाँ पे आकर के यहाँ पे जनरेट हुआ है, जर्मिनेट हुआ है। आफ्टर लिसनिंग टू दिस बुझो noted to in his notebook by harboring greater variety of plants, the forest provide greater opportunities for food and habitat for the herbivores. Larger animals of herbivores means increased availability of food for a variety of carnivores. The wild variety of animals help the forest to regenerate and grow. Decomposers help in maintaining the supply of nutrient to the growing plants in the forest. Therefore, the forest is dynamic, living entity full of life and vitality. सो स्टूडेंट वी नो दैट इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर प्रीशियस रिसोर्स, उसमें हमने पढ़ा था जल है तो कल है। ऐसे ही फॉरेस्ट में हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट भी बिना फॉरेस्ट के हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, फॉरेस्ट में से हमें बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, फॉडर मिलता है, शेल्टर मिलता है। सो फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी प्ले अ फॉरेस्ट, फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी for because of the presence of forest. Here the some diagram.
Rainwater drips from the trees and seep into the ground. That because of the presence of the tree. These are the roots by which the rainwater drips from the trees and seeps into the ground. After this you can see this image. This is very important, that what would happen if forest disappear. अगर forest disappear हो जाता है तो क्या होगा. फर्स्ट पॉइंट, लुक दिस फिगर. दिस केस मीन्स यहाँ पे तो बहुत सारे फॉरेस्ट हैं लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है. देन व्हाट विल हैपन. इस केस में यहाँ पे देखो बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ड्रॉट आ गया जिसकी वजह से ये गायब हो गए हैं. थर्ड केस देखो, प्लांट्स के कट जाने से क्या होता है, ये यहाँ पे देखो यहाँ पानी ज़्यादा हो गया है. मीन्स दैट व्हाट हैपन, फ्लड्स. सो इन फर्स्ट केस what happening, if forest disappear the amount of carbon dioxide in air will increase. अगर फॉरेस्ट कट जाएगा, डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस होने लगेगी तो CO2 का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा. इन द absence of trees and plants the animals will not get food and shelter. So in second figure, as you see that no shelter for the animals here. In second, this no, in the absence of trees and plants the animals will not get food and shelter. In the absence of trees the soil will not hold water, which will cause floods. Here flood occurs because of trees deforestation. Here due to this the water holding capacity of plant is no more, that's why the floods occur. In fourth position, deforestation will endanger life and environment. Think what we can do to preserve our forest. डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए है, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. So this is all about your chapter 17. So this is remaining portion of this chapter. It was about afternoon and the children wanted to go back. Tibu suggested another route for going back. While they were going back, it started raining. However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. कुछ देर बाद बच्चों ने कहा कि अब हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से. तो तीबू ने उन्हें दूसरा रास्ता बताया कि चलो हम इस रास्ते से वापस चलते हैं. लेकिन जब वो लोग उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो अचानक बरसात शुरू हो जाती है एंड वो देखते हैं कि कोई भी रेन ड्रॉप उनके ऊपर हिट नहीं कर रही है या डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं गिर रही है. जो अर्थ का जो फ्लोर है उस फ्लोर पे डायरेक्टली वो रेन की ड्रॉप नहीं आ रही हैं. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेज एंड द स्टेम ऑफ द ट्रीज. जो कैनोपी फॉर्मेशन प्लांट ने किया उसकी वजह से सीधे डायरेक्ट वाटर नीचे नहीं आ पा रहा है, और आ तो रहा है वाटर लेकिन उनकी वहाँ से कैनोपी से ब्रांचेस पे जा रहा है, ब्रांचेस से फिर वो फ्लोर पे आ रहा है. From the leaves, it was dripping slowly over branches of the shrubs and herbs. They found that the ground was still dry. After about half an hour, the rain stopped. They noticed that the layer of dead leaves over the forest floor appeared wet now, but water did not stagnate
इन द फॉरेस्ट। जब बारिश रुक जाती है तो वो देखते हैं कि वाटर नीचे पानी तो गिरा है, रेन तो हुई है, लेकिन ये रेन से ये जो यहाँ की जो लीव्स वगैरह है सरफेस पे जो पड़ी हैं ये तो वेट है, लेकिन पानी स्टेगनेंट नहीं है, पानी रुका हुआ नहीं है फॉरेस्ट में। बूझो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हैवली इन दिस टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रूट्स। बूझो ने कहा कि अगर थोड़ी सी बरसात गांव में हमारे हो जाती है, हमारे शहर में, तो पूरा हर जगह पानी पानी हो जाता है, बट इन द फॉरेस्ट ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्हाट वुड हैपन इफ द रेन हैवली इन योर टाउन, क्या होगा अगर ज़्यादा बरसात हो जाए आपके टाउन में? तो प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट आल्सो एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर। कैसा एक्ट करता है? नेचुरल एब्जॉर्बर, मतलब वो वाटर को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेन वाटर को, एंड अलाउज इट टू सीप। और कहाँ पे अलाउ करते हैं उसको? सीपिंग करते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर में वो वाटर चला जाता है। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, और वाटर टेबल भी हमारा मेंटेन रहता है इसी प्रोसेस से। हम कह सकते हैं वाटर साइकिल भी यही होती है। Forests not only help in controlling floods but also help maintain the flow of water in the stream so that we get a steady supply of water. On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may floods the area around it. अगर ये नहीं होंगे ट्रीज तो डायरेक्टली वाटर हिट करेंगी हमारी अर्थ सरफेस पे और वहाँ पे फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे या फ्लड्स आ जाएगा। हैवी रेन में आल्सो डैमेज द सॉइल, जिससे सॉइल भी डैमेज हो जाएगा। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर। हम ये जानते हैं कि जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हूँ, सॉइल उसमें बाइंड रहता है। बट इन देयर अब्सेंस ऑफ द सॉइल इज़ वॉश्ड अवे और इरोड। अगर ये प्लांट नहीं रहेंगे तो ये जो भी सॉइल बाइंड हैं ये क्या होगी? इरोड होकर के सॉइल इरोजन कॉज करेंगी। द चिल्ड्रन स्पेंट एन आवर एट तिबूस विलेज ऑन द वे बैक। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्विट प्लेजेंट। कुछ लोग बच्चे जो थे वो तिबू के शहर में कुछ देर रुके, वहाँ का मौसम अच्छा था। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल। वहाँ के लोग बताए कि ये फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पे बरसात भी अच्छी होती है। द एयर आल्सो रिमेंड कूल, नॉइज पोल्यूशन टू इज़ लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज टू द नियर बाई हाईवे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट द एयर आल्सो रिमेंड कूल, नॉइज pollution टू इज़ लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज। अगर आप भी प्लांटेशन करेंगे तो ये नॉइज़ पोल्यूशन रुक जाएगा या कम हो जाएगा, बिकॉज इट एक्ट एज अ एब्जॉर्बर ऑफ नॉइज़। ये नॉइज़ को एब्जॉर्ब करता है। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। इट surprised them that the villages and the agricultural fields of the area were created after clearing the forest about 60 years ago. Children learned about the history of the village. Children ने history पता की उस village की. It surprised them that the villages and the agricultural fields of that area were created after clearing the forest about 60 years ago. Thibu grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now. जब गांव बहुत छोटे होते थे, इतने बड़े नहीं थे. It was also surrounded by forest, और हर जगह जंगल रहता था. Construction of road, building, industrial development, increasing demand of the wood created pressure of the forest, and it started vanishing. ये सब जो डिमांड है कंस्ट्रक्शन की, रोड्स बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, इंडस्ट्री बनाओ, इनके द्वारा इन सब की वजह से जो आपके फॉरेस्ट है वैनिसिंग ख़त्म हो रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं. ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एट जॉइनिंग देयर विलेज इन नॉट रिजनरेटिंग एंड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिस्पेयरिंग ड्यू टू ओवरग्रेजिंग. ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे क्योंकि ओवरग्रेजिंग हो रही है, बहुत सारे जानवर एनिमल्स ओवरग्रेज कर रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोड कर रहा है. Professor Ahmed said that we did things wisely, we could preserve forest and environment as well as हैव डेवलपमेंट. हमें इस इन्वायरमेंट को बचाना है, हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, बचाना है, जिसकी वजह से हम खुद भी बच पाएँ. चिल्ड्रंस प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर्स टू शो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एनिमेंट. बच्चों ने कुछ वहाँ पे पिक्चर्स लिए इस कॉन्सिक्वेंस को शो करने के लिए. एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट. बच्चों से प्रोफेसर अहमद ने लास्ट में इम्पोर्टेंस पूछा कि क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट के. द चिल्ड्रन रोड फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन. फॉरेस्ट हमें क्या देता है, प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन. दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोवाइड हैबिटेट, जानवरों एनिमल्स को रहने के लिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं.
फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, रेनफॉल भी एक रीज़न है फॉरेस्ट का। नेबरिंग एरियाज, दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, और फॉरेस्ट में मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं, टिम्बर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट, सो हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 17 फॉरेस्ट अ नेचुरल रिसोर्स। द एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।